this matter reach a couple of courts since 1991? So let's quickly open this up to our guests joining us this morning. We have Mr. Naveen Chomal with us. We also have spiritual guru Acharya Vikramaditya, Advocate Tausif Ahmed, and SP spokesperson Mr. Abhishek Som. Mr. Chomal, if I could begin by asking you as to what do you think, can be made of the current situation, given that this matter has reached several courts. Talk about the Allahabad High Court, talk about the Varanasi local court. Now the district court is of course looking at it. The Supreme Court also did intervene up to a point, and now it's also reviewing the Places of Worship Act and how valid is that act really at the moment. So amidst all of these developments, what do you make of this case and where it stands as of today? See, for the moment, keeping the Places of Worship Act aside, of course I got a reason for that, I'll explain. Coming to this particular issue of Gyan Vapi Mandir, because it was originally named as Alamgiri Masjid, but a Gyan Vapi comes from the well of knowledge, and Gyan Vapi is now nowhere a shabd of Urdu or Islamic language anywhere. So coming to the core issue, there are remains of a temple at that particular site. The place is of temple, and over the temple, the mosque was built after demolishing the temple. Let us go into the text of the history, which is documented and undisputed, that in 1666 there was a treaty between Chhatrapati Shivaji Maharaj and Aurangzeb, Treaty of Purandargarh. But subsequently, Aurangzeb deceived Chhatrapati Shivaji Maharaj in Agra when he was detained, and Chhatrapati Shivaji Maharaj escaped from Agra, and in 1669 Aurangzeb broke the treaty and issued farmans for destructions of 4 major Hindu temples, including Mathura temple and this Kashi Vishwanath temple, which was sacred to the Hindus. So that farman and all those documents are on record, and plus the site is there. Aurangzeb had built it purposefully in such a way that Hindus should be reminded every time that look, your mandir was there, and on top of it we have built a mosque. So the remains of temple are always there. For example, okay. And that's what the Hindu side has argued all throughout, year after year, since 1991, when this issue has been raked. That's the one argument that the Hindu side has put forward time and again. Mr. Tausif Ahmed, the court-mandated survey also of the masjid had reportedly thrown up evidence strengthening the suspicion of several Hindu believers in religious outfits. If we talk about everything that did come to light, that did get revealed through the course of the investigation and the videography that was surveyed, but there has been a blatant denial all throughout, and the one argument being made from the other end is, no, this is a Waqf property and hence this very plea is not maintainable. You see, if the government decides to demolish Muslim places of worship and construct a place of worship of another religion, then it is government's decision. Government can use all its might. It has police, it has everything, it has money, and so it should be a government decision. The government should refrain from making court or judiciary a scapegoat, and the judiciary also must not allow it to become a scapegoat for the decision that the government of the day wants to take. You see, the very vital question is that can court by judicial process create facts on the ground? The Supreme Court in Ayodhya case cited Places of Worship Act and said that it is a guarantee that the passion play of Ayodhya would not be enacted on any other site. Justice Chandrachud was a member of that bench. But how will one get to the facts if an attempt is made to stop, the videography, to stop a survey of the mosque premises? Now, whatever information has come out so far, it has suggested that floral motifs on the mosque walls are also a clue of sorts. And the apparent discovery of a shivling-like structure that, some of the devotees are now talking about. They're, of course, excited about that. Much of it really depends on the facts. But why is it being opposed at this junction, at this stage? You see, as a student of law and as an officer of court, I will defend
judiciary, and I will advise judiciary from not making itself a mockery or becoming a circus, because it then affects the image of our country in the Mr. world. Ahmed, then you're not placing your trust in the judiciary, Yes. and that's going to be extremely problematic. the language I'm going to have to is go very across to Mr. Vikramaditya. Acharya Vikramaditya, illegal order- आप क्या कहेंगे? तौसीफ अहमद कह रहे हैं कि सवाल जुडिशरी पे भी उठता है, कोर्ट्स पे भी उठता है, ये सिर्फ फेथ की बात नहीं है, ये फैक्ट्स की भी बात है। नहीं, तौसीफ साहब को इस बात समझ में आनी चाहिए कि सवाल उन पर उठता है सबसे पहले। जिस प्रकार के तथ्य आपके सामने उपस्थित हैं, तौसीफ साहब, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, मुझे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस है, प्रैक्टिकल एविडेंसेस आपके सामने हैं, और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, और आप जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, कोर्ट के थ्रू डिसीजन हो रहा है, राम मंदिर में भी कोर्ट के थ्रू डिसीजन हुआ, और उस पर भाई आप कोई ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो ये तो समझ में नहीं आता है। आप मुझे बताइए कि क्या औरंगजेब का जमाना चल रहा है कि सरकार जो चाहेगी कर देगी? लॉ के अनुसार किया जा रहा है, और हिंदू समाज शांति से बैठ के समझ रहा है। सामने मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं तौसीफ साहब, इस फोटो को देखकर शायद कोई भी व्यक्ति कह देगा कि किस प्रकार की बर्बरता हुई और किस प्रकार की ये मस्जिद के पीछे का हिस्सा है, ये मस्जिद के पीछे का हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है, और शायद कोई अंधा व्यक्ति भी कह देगा कि ये मंदिर है, मंदिर को तोड़कर विध्वंस कर कर उस जगह पे बनाया गया है। आप लोग सामने बैठे हुए चीजों को जिस प्रकार से हम अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं वो गलत है। तौसीफ साहब, इस प्रकार के लांछन लगाना इस देश में आप पुनः असहिष्णुता बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अशांति बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, और 21वीं सदी के अंदर बैठकर आप इस प्रकार के तथ्यों को रखते हैं कि न्याय आपके साथ नहीं हो रहा है और सरकारें मुसलमानों की मस्जिदों को विध्वंस करना चाहती हैं। कहां सरकार चाहती है? औरंगजेब का जमाना है क्या? तलवार लेके चल रहा है कोई व्यक्ति? न्याय के अनुसार जीत हो रही है, न्याय के अनुसार, तथ्यों के अनुसार, प्रत्यक्ष प्रमाणों के अनुसार से, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के पास ना तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ना आपके पास प्रैक्टिकल एविडेंस, और तो और सामने बाबा विराजमान हो गए, और उसके बाद भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है सामने बाबा प्रत्यक्ष सामने आपने छुपा के रखा हुआ था। वहां पर आचार्य विक्रमादित्य जी, क्योंकि सवाल शुरू से इस पे भी उठा है कि सर्वे क्यों करने दिया जा रहा है, वीडियोस क्यों लेने दी जा रही हैं? अगर कोई डरने की बात नहीं है, अगर बहुत कॉन्फिडेंट है फैक्ट्स को लेके कि यहाँ पे एक मस्जिद ही था, तो सर्वे कंडक्ट करने देना चाहिए। That's the question, Tawseef Ahmed, that many are asking. Exactly. It's not me. Those who are opposing the Muslim side's contention, they have been saying this. You see, there's a Place of Worship Act which clearly states that after a certain date, which was 1947, 15th August, a nature of a place of worship cannot be changed except the Ayodhya temple. It was kept out of the purview of this act. Now, once we have a law in force which says that you cannot change the nature of the existing religious places, then no police, no court, no religious institution has any jurisdiction. Firstly, the district judge today is going to be deciding whether the current legal dispute over the right to worship is maintainable and whether the plea is supported by tenable evidence. That's what the court is going to decide on. Nobody is saying that, one will go ahead with the construction of a mandir on this very premises right away. So that's not even the contention here. But let me go across to Mr. Sohan Lal, who's a petitioner in this very case. Sohan Lal जी, हमें बताइए कि आप क्या समझते हैं अभी तक इस केस के बारे में? आप बहुत जानकारी से जानते हैं कि क्या-क्या डेवलपमेंट्स रही हैं इसमें। आपने ये भी बोला है बहुत टाइम पे कि बहुत सारा एविडेंस है जो सपोर्ट करता है कि यहाँ पे एक मंदिर था। यह मंदिर ही है। जो है 38 वर्ष से ज्ञानवापी उद्धार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और सारे प्रमाण 18 अगस्त 1669 से औरंगजेब के फतवे के अनुसार हमारा ध्वंस आराध्य किया गया है। और आज जो फैसला आने वाला है, यह विश्वनाथ मंदिर के शिलान्यास का रोपण का यह प्रबंधित है। और निश्चित यह जो फैसला है हिंदू समाज के लिए, मंदिर समर्थकों के लिए हर्ष का दिन है। हम उत्साहित हैं, मुस्लिम सभा, और इसलिए उत्साहित हैं
क्योंकि माननीय न्यायालय में मुस्लिम समाज के अपने लचर रवैये के कारण, लचर दस्तावेज के कारण वह कोई भी ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका जिससे कारण कि उसकी बात हो सके। और ये यही नहीं, सारे साक्ष्य, सारे डॉक्यूमेंट, सारे दस्तावेज हिंदू समाज के पक्ष में थे। मुस्लिम समाज शुरू से ही मात्र 2 बिंदुओं पर ही केंद्रित रहा, 1990 वर्षित एक्ट और जो है और धार्मिक और वर्षित एक्ट पर ही था। इसलिए और सारे साक्ष्य उसके प्रूफ नहीं हो पाते हैं। धर्म स्थल विधेयक ज्ञान वापी के मुद्दे पर जो है सफल नहीं हो पाता है। जी सोहनलाल जी, क्योंकि सर्वे की बात की नहीं जा सकती जब तक मेंटेनेबिलिटी पे एक डिसीजन ना लिया जाए कोर्ट के द्वारा, पर आप बताते आए हैं कि सर्वे जब कंडक्ट किया गया था तो आप भी वहां मौजूद थे, तो आप कितनी उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेंटेनेबिलिटी के फेवर में अगर कोर्ट अपना डिसीजन लेगा तो उसके बाद पूरी तस्वीर पलट जाएगी, क्योंकि जो एविडेंस है वो आप समझते हैं कि बहुत कड़क है? बिल्कुल, इसलिए है कि उनका वाद है कि वक्फ पर यह ज्ञान वापी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, जबकि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है ही नहीं। आपको थोड़ा सा पीछे ले आना चाहते हैं, मुकदमा नंबर 62/1933 में जो है 1933 तीन मोहम्मद के लिए वह उन्होंने वाद दाखिल किया था कि यह संपूर्ण भूमि पर हमको नमाज पढ़ने की अनुमति दिया जाए। अंग्रेजों का समय था, वह उनका मुकदमा खारिज हो गया क्योंकि वह कोर्ट की जो है संपत्ति घोषित नहीं कर पाए। वह भाग करके हाई कोर्ट में गए, वहां 1944 से फैसला आया, वह भी वक्त संपत्ति घोषित नहीं कर, और आज तक वह संपत्ति घोषित नहीं कर पाए। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अभी 1 महीने पूर्व ज्ञान वापी के मामले में वक्त की संपत्ति घोषित करने के लिए ज्ञान वापी से 14 किलोमीटर दूर मरुआडी को अपनी संपत्ति ज्ञान वापी से जुड़ा हुआ मान रहे थे। अराजी नंबर 9130, लेकिन विष्णु शंकर जैन जी ने यह कहा कि अरे भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, अराजी नंबर 9130, लेकिन यह तो 14 किलोमीटर दूर है। तो उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि नहीं, यह भूल हो गई, कल हम दूसरा कागजात प्रस्तुत करेंगे। फिर दूसरे दिन अराजी नंबर 9130 के समय हिंदू माधव मंदिर जो आलमगीरी के नाम पर ध्वस्त हुआ, उसका प्रमाण प्रस्तुत करने लगे। कहने का तात्पर्य माननीय न्यायालय को धोखा देने का प्रयास, हिंदू समाज को धोखा देने का सारे गलत साक्ष्य प्रस्तुत करते। इसलिए समाज यह निश्चित जो है उनकी पराजय है और पराजय का दिन है। जी अगर मुसलमान साइड की बात की जाए सोहनलाल जी, तो बार बार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में सुनवाई कर रहा है, अगले महीने फिर से ये वाला मुद्दा उठाया जाएगा टॉप कोर्ट के द्वारा। पर अगर आपके फेवर में ये बात आती है आज, तो उसके अगला कदम आप क्या लेंगे? देखिए, अगला कदम हमारा जो है वो जो है कार्बन डेटिंग की मांग होगी, और जो जहां शिवलिंग गोल ढेर में है उसको दीवार तोड़ करके आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि वह जो 4 फीट की शिवलिंग है, हमने वहां पर ज्ञान वापी मसाजिद कमेटी के लोगों से पूछा क्या यह इसके शानदार खाना का हाँ, और सीढ़ी के वहां कहाँ है, तो सीढ़ी के माध्यम से हमको ले गए और देखे कि 15 फीट की जो दीवार है, आपको आश्चर्य होगा कि 4 फीट का शिवलिंग के नीचे जो 15 फीट का दीवार है उसको गोल घेरे में ईंटे से जोड़ की गई थी। यानी उसको तोड़ा जाए तो 4 फीट और नीचे 15 फीट का शिवलिंग जोड़ दिया जाए, 19 फीट का शिवलिंग, और नीचे के धरातल को जोड़ा जाए तो नंदी और यह शिवलिंग का धरातल एक ही साबित होता है। और निश्चित यह मंदिर का अंश है, मंदिर ही है, मंदिर ही है। जी सोहनलाल जी, पर जब भी शिवलिंग की बात वहां की गई है तो दूसरी साइड से एक ही बयान आया है कि वो एक फुवारा था। तो आप कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छे से पूरा एविडेंस देखा है, अपनी आंखों से देखा है, तो उस बात को आप क्या कहेंगे? हम 38 साल संघर्ष कर रहे हैं और 95 श्रृंगार गौरी का वाद दाखिल किया, हम ही वादी है, सबसे पहला वादी हम ही है जो है, और स्पष्ट कहते हैं कि पहले जैसे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये फुहारा हमसे ही बहस हो रही थी। उस समय ज्ञान वापी इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता जो है अभयनाथ यादव जी थे, उन्होंने कहा यह फुहारा है। हम कहे सर हम मानते हैं फुहारा है, हम भी कह रहे फुहारा है, लेकिन आप पानी आने का मार्ग बताइए, कहे नहीं है। हम कहे जाने का मार्ग बताइए, कहे नहीं है। हम कहे चलिए बताइए फुहारा आपके दृष्टि है, कहे अभी तो नहीं है। देखिए यह फुहारा अचानक एक सज्जन वृद्ध थे मुस्लिम समाज के, कहे फुहारा हमने देखा है, कितने वर्ष पहले देखे हैं, कहे ये खराब है, कितने वर्षों से, कहे 20 वर्षों से। हम तो उसका क्यों नहीं, कहे कोई बनाने वाला नहीं है जी। दूसरे सज्जन ये कहते हैं, दूसरे सज्जन ये कहते हैं, हाँ
दूसरे सज्जन ये कहते दूसरे सज्जन ये कहते हैं कि 12 वर्षों से है, लेकिन और आज भी यथावत है, उसमें कोई भी फुहारे का चिन्ह नहीं है। उनकी भावनाओं को हम आज भी अगर चुनौती देते हैं कि यदि फुहारा है तो आज भी साबित करके दिखाए। फुहारा वह है ही नहीं, वह शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। एक और प्रमाण आपको दे रहे हैं। उस कालखंड में वहां जो उनके अधिवक्ता थे अभयनाथ यादव जी, उन्होंने कहा कि अगर यह ज्योतिर्लिंग है तो मैं हाँ। All right, so that's Sohan Lal, the petitioner there himself, breaking down details of his understanding of the case so far.